let us learn a few laws in some basic concepts of chemistry. These laws together are called as the laws of chemical combination. The first law in this comes, that is the law of conservation of mass. This is the statement for the law. It says that mass can neither be created nor be destroyed, or the alternative statement for this is, in a chemical reaction, the total mass of the reactant must be always equal to the total mass of the product. Now, this shows the importance of a balanced chemical reaction in chemistry. Why do we always balance a reaction, chemical reaction in chemistry? If you balance it, then it will be in accordance with this law. If you don't balance the reaction, it will be contradiction to this law. How? I will show you with the help of an example. Okay, let us try and learn this law. Here, I am going to take a balanced chemical reaction. Or rather, first let us take unbalanced chemical reaction. And the other part, I will take a balanced chemical reaction. Here, let us say we have nitrogen plus hydrogen, and that gives us ammonia. This reaction is not balanced, right? So N2 becomes 28 grams plus H2 is 2 grams, that makes it 30 grams. Here, this is 14 plus 3 of hydrogen, that is 17 grams. You can see the total mass of the reactants is not equal. So this is contradictory to the law. Correct or not? Now the same reaction, I will balance it. Nitrogen plus hydrogen gives us ammonia. Let us balance it. This should be twice, this should be 3 times. Correct? These are called as the stoichiometric coefficients. Right? Here the coefficient is 1 mole, that is 28 grams. 3 to the 6, that is 6 grams. The total is 34 grams. This is the total mass of the reactants. Nitrogen is 14 plus 3 hydrogen, that is 17, but this is twice. 17 to the 34 grams. Now these are equal. Correct? Perfectly equal. The total mass of the reactants is always equal to the total mass of the products in a chemical reaction. This is in accordance, करेक्ट विद द लॉ. ऐसा इसके लिए ये सही है. केमिस्ट्री में रिएक्शन क्यों बैलेंस करते हैं समझा है ना, इस लॉ की मदद से, नहीं तो मास क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओके, लेट्स सी द सेकेंड लॉ. इट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. इट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन ऐसा भी कहते हैं. बाय मास ऐसे आना चाहिए इस लॉ में, है ना, ये देना चाहिए. मैं ब्रैकेट में दे रहा हूं. ये स्टेटमेंट है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास irrespective of the source or the method of preparation. This is pretty simple. करेक्ट ना. किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, उसके अंदर एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उनका रेशियो जो है बाय मास वो फिक्स रहेगा, है ना. कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, उसके अंदर एलिमेंट्स है, उसका रेशियो बाय मास ये फिक्स रहेगा. लेट्स सी एन एग्जांपल. कैल्शियम कार्बोनेट में क्या क्या आता है ना, विच आर द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस. देयर इज कैल्शियम, देयर इज कार्बन, देयर इज ऑक्सीजन, राइट, है ना. फिर यहाँ पे परसेंटेज लिखते हैं. यहाँ पे लेट अस से नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स है, और यहाँ पे लेबोरेटरी मेथड में प्रिपेयर किया या मैन मेड कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होता है. तो इसमें ये 40% रहेगा, है ना, ये 12% रहेगा, राइट, और ये हमेशा 48% रहेगा नेचुरल इसमें. तो मैनमेड में क्या रहेगा, ये 40%, ये 12% और ये 48%. ये परसेंटेज अगर आप चेंज करेंगे तो और कुछ मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मिलेगा. करेक्ट है. लॉ क्या कहता है, अ गिवन कंपाउंड, ये कंपाउंड है कि नहीं,
always contains exactly the same proportion of elements. ये elements है और इसका proportion क्या है 40:12:48. ये proportion irrespective of the source और method of preparation. मतलब आप नेचुरल सोर्स ले या मैनमेड में भी कैल्शियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन हर मेथड में कैल्शियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास फिक्स रहेगा. दैट इज दिस लॉ. थर्ड लॉ देखते हैं, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. इसके पहले जो था दैट वाज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. दिस इज मल्टीपल प्रोपोर्शंस अगेन बाय मास ही है. ये स्टेटमेंट है व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी, ये हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स लिए ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, डिफरेंट masses of elements B that combines with the fixed mass of A are always in the ratio of small whole number. काफी बड़ा है ना. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से वी हैव हाइड्रोजन plus oxygen giving us water, correct? Or hydrogen plus oxygen giving us hydrogen peroxide. So now this reaction obviously is not balanced. I need to balance this. So इसको तो easily balance कर सकते हैं, है ना? How we can balance this? This should be twice, right? And then this should be twice. So 2H2 मतलब ये क्या हो गया 4 grams. करेक्ट. इसमें ये क्या हो गया O2 मतलब 32 ग्राम्स, राइट. यहाँ पे H2, ये तो रिएक्शन बैलेंस्ड ही है. H2 मतलब दिस इज 2 ग्राम्स, राइट, एंड दिस इज अगेन 32 ग्राम्स ऐसे, राइट. और फिर अभी हम लोग देख लेते हैं, इसको A मान लो और इसको B मान लो. तो ए और बी चेंज नहीं हुआ है. यहाँ पे ए और बी वही है. इतना ही नहीं है ना, बी का जो मास है ना, डिफरेंट मासेस ऑफ बी ऐसा बोले. तो हम लोग उल्टा ले लेते हैं. लेट्स से ये बी है और ये ए, करेक्ट ना. लॉ के हिसाब से समझ में आए इसके लिए बता रहा हूँ. ये बी लेते हैं और ये है ना, डिफरेंट मासेस ऑफ बी. बी का मास यहाँ पे 4 ग्राम्स लिया और यहाँ पे कितना लिया है 2 ग्राम्स लिया, करेक्ट ना. दैट कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ ए. ए का मास कितना है 32 ग्राम्स और यहाँ पे कितना है 32 ग्राम्स. तो बी ए का मास हमने फिक्स रखा है और बी का चेंज किया है. तब इसका जो मास है 4 और 2, इसका रेशियो कितना आएगा, है ना. इट विल बी 4:2. मतलब क्या होता है 2:1. Isn't it a simple whole number ratio? This cannot be further simplified. तो ये सिंपल है, होल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है. किसका रेशियो निकाला मैंने, इसका और इसका. जिसके मासेस डिफरेंट है उसका रेशियो जो है वो सिंपल होल नंबर में आता है, ऐसा ये लॉ कहता है ना. इसका सिंपल मतलब ये है. इसके पहले क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. जब तक आप प्रोपोर्शन बाय मास सेम रखते हैं आपको एक ही सब्सटेंस मिलेगा. लेकिन यहाँ पे दो सब्सटेंसेस, दो अलग कंपाउंड्स दे रहे हैं. क्यों अलग दे रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोपोर्शन बाय मास चेंज किया है. यहाँ पे 4:32 है, यहाँ पे 2:32. तो अगर मासेस चेंज कर दिया तो सब्सटेंस अलग मिलता है. ये पहली बात. दूसरी बात, ऐसा होने के बाद भी जिसका मास बदल रहा है, एक का फिक्स रखा है, जिसका बदल रहा है ना, वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है. दिस इज द लॉ, करेक्ट. और एक एग्जांपल लेते हैं. विल टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स से वी हैव, इसको इरेज कर देता हूं, कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, है ना. लेट्स टेक कार्बन एंड ऑक्सीजन. Second example, let's say C plus O2, this is giving me CO2, and the same C plus O2 is giving me CO. तो यहाँ पे हाफ O2 आएगा. ये मेरा A है और ये मेरा B. A और B चेंज हुआ ही नहीं है, करेक्ट और नॉट, राइट. अब इसका मास 12 ग्राम्स है और इसका मास कितना है O2 मतलब 32, और यहाँ पे इसका मास 12 ही है, लेकिन ये हाफ मतलब 16 हो गया. तो ए का मास तो हमने फिक्स रखा है, करेक्ट ना. ये फिक्स है कि नहीं. और डिफरेंट मासेस ऑफ बी करेंगे तो कंपाउंड अलग मिलता है. अब जिसका मास बदल रहा है ओ का, करेक्ट ना, उसका रेशियो क्या है 32:16. मतलब क्या हो गया वापस 2:1. दिस इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, करेक्ट ना. तो प्रोपोर्शन बाय मास चेंज किया तो नया सब्सटेंस मिलता है, कंपाउंड. और ऐसा होने के बाद भी जिसका मास बदल रहा है उसका रेशियो लेंगे मास का, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है.
Okay, let's see the next law. This is the law number 4. इसके पहले जो 3 लॉज देखे उन लॉज में मास से रिलेटेड वो थे, अब वॉल्यूम के लिए है. इसका नाम है गay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस. ये सिर्फ होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन के लिए, मतलब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसेस होने चाहिए तभी ये लॉ एप्लीकेबल हो सकता है. The law states that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. मतलब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तब दो और दो से ज्यादा गैसेस कंबाइन होके और एक गैस प्रोड्यूस करते हैं. तो जितने भी गैसेस है, जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, सारे गैसेस, उनका रेशियो बाय वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है. दे आर ऑलवेज इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो. लेट्स सी एन एग्जांपल हियर. Example number 1, let's say we have nitrogen gas plus hydrogen gas gives ammonia gas. ऐसे इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है. तो इसका जो 1 है, I can read that according to this law as 1 liter of nitrogen combines with 3 liters of hydrogen to produce 2 liters of ammonia. Correct? Therefore, the ratio by volume of nitrogen gas is to hydrogen gas is to ammonia gas is, what is it, 1:3:2. करेक्ट. और ये रेशियो कभी भी किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा. दैट इज व्हाट यू नीड टू रियलाइज. समझ में आता है ना. और एक एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स से वी हैव हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस. दिस इज गोना गिव मी HCl gas. Correct? And this is balanced. So one coefficient is 1, stoichiometric coefficient. 1 liter, this is 1 liter and this is 2 liters. So according to gay-Lussac's law of combining volumes of gases, the ratio by volume of what in this reaction, hydrogen is to chlorine is to HCl, all these are gases. It is 1:1:2. The ratio is important. Correct? And this ratio will never change. Remember, it's a homogeneous gaseous reaction. Homogeneous gaseous reaction मतलब क्या होता है? सारे reactants and products are in gaseous form. यहाँ पे भी all reactants and products are in gaseous form. So this is the law. याद रखना, वॉल्यूम्स का रेशियो कभी भी किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा. हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तभी भी चेंज नहीं होगा. करेक्ट. इसके अलावा ये जो नंबर्स हैं इनको कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. वो भी क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ. ओके. To have a better understanding of gay-Lussac's law of combining volumes of gases, I have given one example here. Let us read it. 3 liters of nitrogen combines with 12 liters of hydrogen to produce some amount of ammonia in a closed container. Calculate the volume of ammonia produced and calculate the volume of gas in excess. इसमें से कोई अगर बचा रहेगा रिएक्टेंट्स में से वो निकालना है. और एक चीज है यहाँ पे ये मार्क करना, ये होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन होने वाला है. नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो रिएक्टेंट्स है, वो गैस है. जो प्रोड्यूस होगा अमोनिया वो भी गैस है. तो होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन होने के लिए कंटेनर का क्लोज होना जरूरी है. नहीं तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट अगर उड़ जाएगा या रिएक्टेंट्स निकल जाएंगे तो रिएक्शन पूरा नहीं होगा. करेक्ट. यू शुड ऑब्जर्व दिस. तो मैं सॉल्व करता हूँ. ये पहला जो है इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं. नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस gives us ammonia gas. I need to balance this. Correct? This should be 3 times and this should be 2 times, right? ऐसे. Then according to gay-Lussac's law of combining volumes of gases, है ना, इसको कैसे पढ़ना चाहिए? 1:3:2 liters. 1 liter combines with 3 liters to form 2 liters. अभी अपने पास अवेलेबल वॉल्यूम कितना है? नाइट्रोजन का कितना लिया है? 3 liters. That is available. हाइड्रोजन का कितना लिया है? 12 liters. राइट. और इनिशियली इसका तो 0 ही रहेगा, है ना, अभी इनिशियल स्टेज में. करेक्ट. ये अभी फॉर्म में रिएक्शन शुरू नहीं हो. करेक्ट. इनका रेशियो रिएक्शन के हिसाब से 1:3 होना चाहिए. तो 3:4 अगर करेंगे, 3 मतलब ये 4, ये जो रेशियो है ये तो 1:4 हो गया. 3:12 मतलब करेक्ट ना, होना क्या चाहिए? 1:3. लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो 1:4 के इसमें. तो क्या होगा? ये जो 3 लीटर है इसमें से कंज्यूम कितना होगा? मैं यहां पे लिख रहा हूं कंज्यूम्ड वॉल्यूम. कंज्यूम मतलब इसमें से यूज कितना होगा? ये पूरा 3 लीटर यूज होगा, है ना, माइनस लिख रहा हूं, पूरा यूज होगा.
और इस 12 में से सिर्फ 9 लीटर ही कंज्यूम होगा। अभी देखो रेशो 1:3 है, मतलब अवेलेबल कितना है 12 लीटर, लेकिन क्या पूरा 12 लीटर हाइड्रोजन यूज हुआ है? नहीं हुआ है। 12 में से सिर्फ 9 हुआ है, क्योंकि वो अपना रेशो छोड़ते नहीं है। इस रेशो में रिएक्ट करेंगे तो रेशो क्या होगा 3:12 मतलब 1:4, लेकिन ओरिजिनल रेशो क्या है 1:3। तो वो कायम रखने के लिए भले ही 12 लीटर ये अवेलेबल हो, लेकिन 12 लीटर पूरा यूज नहीं हो रहा है। 12 लीटर में से सिर्फ 9 लीटर यूज हो रहा है, तो ये बचेगा, यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है 3 लीटर्स बचेगा। ये कुछ भी नहीं बचेगा, 0, 3 लीटर्स। करेक्ट ना? इसके लिए ये क्या हो गया एक्सेस। इसको हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? दिस इज एक्सेस। ये एक्सेस रिएक्टेंट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया है ना, बहुत लिमिटेड, पूरा कंज्यूम हो गया। और ये एक्सेस जो बचता है वो एक्सेस है, और प्रोडक्ट कितना मिलेगा वो लिमिटिंग के हिसाब से तय करता है, क्योंकि रिएक्शन का कंट्रोल नाइट्रोजन कर रहा है ना। देखो बेचारा हाइड्रोजन अवेलेबल तो है पूरा 12, लेकिन अपनी मर्जी से पूरा 12 रिएक्शन में पार्ट ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। होने के बाद भी उसमें से सिर्फ 9 ले रहा है, क्योंकि ये उतना है ही नहीं। अगर ये 4 लीटर होता है तो ये पूरा 12 यूज हो जाता 1:3, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। इसकी मर्जी से हाइड्रोजन को चलना पड़ता है, तो यही डिसाइड करेगा, जो लिमिटिंग होता है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना मिलेगा। इसके लिए इसका और इसका रेशो क्या है? 1:2 का है, तो 1:2 के हिसाब से 3:2 क्या आना चाहिए? इसका जितना कंज्यूम होता है उसका डबल इसका फॉर्म होना चाहिए, तो 6 लीटर आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? इसका जितना कंज्यूम होता है उसका 3 टाइम्स इसका कंज्यूम होना चाहिए, जो बराबर है 1:3, और इसका जितना कंज्यूम होता है उसका डबल इसका फॉर्म होना चाहिए। इसका 3 लीटर कंज्यूम हो रहा है, मतलब इसका 6 लीटर फॉर्म हो रहा है। तो पहले का आंसर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूसेस 6 लीटर्स, और दूसरा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस इन एक्सेस। गैस इन एक्सेस कौन सा है? हाइड्रोजन, जिसका वॉल्यूम कितना है 3 लीटर्स। Okay, now see two terms. First is what is a stoichiometric coefficient. What is a stoichiometric coefficient or stoichiometric coefficients? These are the coefficients of the reactant and the product in a balanced chemical reaction. So whenever we balance a reaction, there are numbers, and those numbers are called as stoichiometric coefficients. And based on this, the second term that we need to learn is stoichiometry. It is STOI, stoichiometry. Well, what is stoichiometry? It is the branch of chemistry that deals with the stoichiometric coefficients. मतलब ऊपर जो लिखा है उन कोएफिशिएंट्स का स्टडी करते हैं, उसको स्टोइचियोमेट्री ऐसा कहते हैं, है ना। कोई भी रिएक्शन जैसे हमने लिया, ये नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अस अमोनिया गैस। इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं, अब तक कई बार कर चुके हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो ये जो नंबर्स है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है। गिब्स-सैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स के हिसाब से ये 1 लीटर हो सकता है, ये 3 लीटर हो सकता है, ये 2 लीटर हो सकता है। सो दीस नंबर्स आर मीनिंगफुल, लीटर्स है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे अवोगाड्रोस लॉ, इसके हिसाब से ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, 1 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स, है ना। मोल कंसेप्ट के हिसाब से हम जानते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल्स। तो ये सिर्फ कोई साधारण नंबर नहीं है, दीज आर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। जब कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा, ऐसे सपोज 2x + 3y इज समथिंग 32, सो दीज आर कोएफिशिएंट्स, दीज आर मैथमेटिकल कोएफिशिएंट्स। बट केमिकल रिएक्शन में जो आते हैं, दीज आर व्हाट? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
मतलब इन नंबर्स को कोई वैसे वैल्यू नहीं है, लेकिन ये नंबर सिर्फ नंबर है. दिस कैन बी लीटर और दिस कैन बी मोल और मॉलिक्यूल. दीज आर मीनिंगफुल नंबर्स, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल और देखने हैं. Okay, let's see one sum here. 0.1 mole of barium sulfate reacts with 0.2 moles of calcium chloride. Calculate the number of moles of barium chloride formed and identify the limiting and excess reactant. तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं. पहला रिएक्टेंट आपका है barium sulfate which is made to react with CaCl2. तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इसका कैटायन और इसका एनायन. सो यू गेट BaCl2 प्लस और प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CaSO4. तो रिएक्शन के हिसाब से क्या आएगा? मैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आई कैन रीड दिस एज 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ CaCl2 एंड इट इज गिविंग अस व्हाट 1 मोल ऑफ ईच. करेक्ट ना? ये मोल कंसेप्ट है, राइट? अब अवेलेबल मोल्स कितना है? इसका 0.1 मोल है, करेक्ट ना? और इसका कितना अवेलेबल है? 0.2 मोल्स. प्रोडक्ट का भी 0 ये फॉर्म नहीं होगा. दिस इज इनिशियल मोल्स. अवेलेबल मोल्स मतलब इनिशियल, करेक्ट ना? अभी रेशियो 1:1 का होना चाहिए. यहाँ पे 1:1 है क्या? नहीं है. तो 1:1 फॉलो करने के लिए ये तो पूरा जाएगा, इसमें से सिर्फ 0.1 ही जाएगा. तो आया ना अभी 1:1. तो ये होगा एक्सेस 0.1, करेक्ट? मतलब CaCl2 है ना, क्या हो गया? दिस इज एक्सेस. तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग. ये लिमिटिंग है, करेक्ट है? ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? और प्रोडक्ट किसके हिसाब से मिलता है? प्रोडक्ट जो मिलता है वो लिमिटिंग के हिसाब से. इसका रेशियो 1:1 का है, तो 0.1 इसका जब कंज्यूम होगा तो इसका 0.1 मिलेगा. इसका भी वही मिलेगा क्योंकि रेशियो देखो 1:1 का है सबका. आर यू गेटिंग इट? तो ये आपका आंसर है इसका कि BaCl2 का कितना मिल रहा है? 0.1 मोल मिल रहा है. आर यू गेटिंग इट? और ये एक्सेस है 0.1, ऐसा ये लिमिटिंग है. तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं. क्या यूज कर रहे हैं? स्टोइचोमेट्री, है ना? इसके कोएफिशिएंट सबके 1, 1, 1 है, तभी तो मैंने 1 मोल लिखा, करेक्ट है ना? इसका इंटरप्रिटेशन मोल में हुआ, मोल कंसेप्ट के हिसाब से. स्टोइचोमेट्री मोल कंसेप्ट था, है ना? दे गो हैंड इन हैंड. ऐसा उससे समझ में आता है लिमिटिंग क्या, एक्सेस क्या, प्रोडक्ट कितना मिलेगा. सो दीज आर मीनिंगफुल वर्ड्स. वी आर डीलिंग विद स्टोइचोमेट्री हियर. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट लॉ. ये भी वॉल्यूम से रिलेटेड है. Avogadro's law. It says that under the identical conditions of temperature and pressure, equal volumes of gases give equal number of molecules. इसका मतलब volume is directly proportional to molecules when temperature and pressure are kept constant. अगर ये दो constant रहेंगे तो gases का volume and number of molecules are directly proportional, है ना? Example से समझ लेते हैं. Again, I'll take a simple example. Let's say nitrogen gas plus hydrogen gas gives us ammonia gas. Let us balance this. This should be 2 times, this should be 3 times. Now according to Gay-Lussac's law of combining volumes, ये short form लिखा है. GL law मतलब Gay-Lussac's law of combining volumes of gases. 1 liter of nitrogen combines with 3 liters of hydrogen to produce 2 liters of ammonia. Now according to which law? अभी देखा ना हमने, Avogadro's law. The same 1 liter can be written as 1 molecule combines with 3 molecules to produce 2 molecules. ऐसे. Are you getting it? तो 1 liter मतलब वॉल्यूम में नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स अकोमोडेट हो रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल. जबकि हाइड्रोजन के 3 लीटर वॉल्यूम में हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स अकोमोडेट हो रहे हैं. और अमोनिया के 2 लीटर्स में अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स है. जितना लीटर उतना ही मॉलिक्यूल. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना? इस लॉ का फायदा ऐसा है कि वॉल्यूम को डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? सपोज हम लोग लेते हैं दूसरा, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स HCl गैस, है ना? इन सारे लॉज में होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन होना जरूरी है. सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस होने चाहिए. So according to Gay-Lussac's law, 1 liter of hydrogen combines with 1 liter of chlorine to produce 2 liters. According to Avogadro's law, 1 liter means 1 molecule of hydrogen combines with 1 molecule
of chlorine to produce 2 molecules. ये आना चाहिए. Are you getting it? है ना, liter can be directly converted into molecules. That is the importance of the law. Now ये सारे laws जो है, why they are so amazing? What is the great thing about this? ये सारे gases जो वो natural है, correct or not? लेकिन maths जो है, ratio या numbers है, सब इंसान ने बनाया हुआ है. It's all abstract. But all these gases under typical conditions, some specific conditions of temperature and pressure, they are following mathematics and we can observe it. That is the greatness about it. Are you getting it? Chemistry is following maths. That is the greatness about all these 5 laws that we have studied. Okay, next we are supposed to learn what is atomicity of a chemical reaction. ये इसके लिए लिखा है क्योंकि atomicity of a compound भी होता है. तो पहले atomicity of a chemical reaction देख लेते हैं. Again, let's take we have nitrogen gas plus hydrogen gas, which gives us ammonia gas, right? ऐसे है ना, इसमें इसको बैलेंस करते हैं. So this should be 3 times and this should be 2 times. अब एटॉमिसिटी का डेफिनेशन क्या है कंपाउंड के लिए? इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स participating in a chemical reaction to form one molecule of the product. मतलब किसी भी प्रोडक्ट का वन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्टेंट्स के जितने एटम्स होते हैं उसको एटॉमिसिटी कहते हैं. इसको समझ लेते हैं. नाउ सी हियर, अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक्स लॉ of combining volumes, GL law मतलब Gay-Lussac's law. How I can read this? 1 liter of nitrogen combines with 3 liters of hydrogen to produce 2 liters. Now according to Avogadro's law, same can be read as 1 molecule combines with 3 molecules to produce 2 molecules. ऐसे करेक्ट ना? लेकिन एटॉमिसिटी निकालने के लिए इसका कितना होना चाहिए? 1 मॉलिक्यूल. तो पूरे इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं ताकि यहाँ पे 1 आ सके. तो दिस शुड बी हाफ अ मॉलिक्यूल, दिस शुड बी 3/2 मॉलिक्यूल. तब ये 1 मॉलिक्यूल आएगा. करेक्ट ना? अब हाफ मॉलिक्यूल मतलब 1 एटम हो गया. करेक्ट ना? 3/2 मतलब क्या हो गया? इट शुड बी 3 एटम्स. करेक्ट. मैं समझाता हूं कैसे आया ये. करेक्ट. इज प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल. अब एटॉमिसिटी क्या हो गया इसके लिए? एटॉमिसिटी 1 + 3 4 एटम्स. इस रिएक्शन का एटॉमिसिटी 4 हो गया क्योंकि प्रोडक्ट का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए रिएक्टेंट्स का टोटल एटम्स इतना लगता है. अब ये कैसे आया? ये समझ लो 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 एटम्स. है ना? ऐसा ही है ना हाइड्रोजन के लिए. सो हाफ मॉलिक्यूल मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली 1 एटम होना चाहिए. करेक्ट ना? 3/2 मतलब क्या होता है? 3 × 1/2 मॉलिक्यूल्स ना. करेक्ट ना? और हाफ मॉलिक्यूल मतलब क्या है? 1 एटम है. तो 3 × 1 एटम मतलब ये 3 एटम्स हो गया. ऐसे आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ये ऐसा है. दिस इज द एटॉमिसिटी. और एक चीज बता दूं, ये जो मैंने मॉलिक्यूल लिखा है, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. है ना? अभी देखा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस इज अवोगाड्रोस लॉ. ये भी अवोगाड्रो ने दिया है. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. ऐसा भी कह सकते हैं. इसके लिए अवोगाड्रोस लॉ के हिसाब से मैं यहाँ पे 1 मोल भी लिख सकता हूँ. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल्स टू प्रोड्यूस 2 moles. Are you getting it? That also is Avogadro's law. Avogadro's law के 2 स्टेटमेंट्स आएंगे. पहला स्टेटमेंट क्या था? Under the standard conditions of temperature and pressure, equal volumes of gases contain equal number of molecules. Molecules की जगह पे moles भी कह सकता हूँ according to mole concept. Now this reaction, इसका atomicity निकालते हैं. According to Gay-Lussac's law, how you can read this? 1 liter of hydrogen combines with 1 liter of chlorine to produce 2 liters of HCl. According to Avogadro's law, the same we can read as 1 molecule of hydrogen combines with 1 molecule of chlorine
to produce 2 molecules of HCl. Are you getting it? Now atomicity के लिए इसका कितना होना चाहिए? 1 molecule. So I'll divide this again by 2. So this will be half a molecule. This is again half a molecule, and that will give us 1 molecule. है ना, ये कंपाउंड है. कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल ही होता है. आर यू गेटिंग इट? है ना, वो कंपाउंड में एटम नहीं हो सकता है. मतलब इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का एक एटम है और क्लोरीन का एक एटम है. एलिमेंट जो होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम हो सकता है आगे जाके. जैसे हाफ मॉलिक्यूल इज 1 एटम, हाफ मॉलिक्यूल इज 1 एटम. करेक्ट ना? इसका इट विल प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ओनली. समझा? ये डाल्टन्स थ्योरम मैं आपको सिखाऊंगा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कैन बी एन एटम, बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल. है ना, वी कैन नॉट हैव 1 एटम ऑफ HCl. करेक्ट? 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हैज 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन. दैट इज द थिंग. तो अभी इसका एटॉमिसिटी कितना आएगा? एटॉमिसिटी इज 1 + 1, दैट इज 2 एटम्स इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए. Okay, next, atomicity, that is number of atoms present in one molecule of a compound or element. इसके पहले जो atomicity देखा that was atomicity of a reaction. अब किसी कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स होते हैं या किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं वो देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. करेक्ट ना? तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? You see, it has 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen, and 6 atoms of oxygen. In 1 molecule of glucose, this is 1 molecule of glucose. It has or it contains 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen, and 6 atoms of oxygen. So the total is 24. Here the atomicity is 24. Let's say we have methane. Methane का formula is CH4. So it has 1 atom of carbon and 4 atoms of hydrogen. So this will be 5 atomicity. Let's say water, simple example ले रहा हूँ. है ना, this is H2O. It has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. The atomicity is 3. Let's say we have ethanol or ethyl alcohol, which is C2H5OH. है ना, या तो इसको एक कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? C2H6O ऐसे लिख सकते हैं. करेक्ट ना? तो एटॉमिसिटी क्या हो गया? 6 + 2 8 + 1 9. करेक्ट ना? 2 एटम्स ऑफ कार्बन, 6 एटम्स. 6 कहां से है? 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 6 हो गया एंड 1, तो दैट इज 9. सो दिस इज द एटॉमिसिटी. है ना? अगर मैं सिंपली ये कंपाउंड्स है, सपोज मैं हाइड्रोजन लेता हूँ, ये तो एलिमेंट है कि नहीं? इसका फॉर्मूला H पे, तो इसका एटॉमिसिटी 2 हो गया. करेक्ट ना? ऑक्सीजन O2, इसका एटॉमिसिटी इज 2. है ना? नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे डायटोमिक है. आर यू गेटिंग इट? मेटल्स जो होते हैं वो है मोनो एटॉमिक. सोडियम, एल्यूमिनियम, है ना, उनके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, मोनो एटॉमिक. तो ये एटॉमिसिटी हो गया. और एटॉमिसिटी से मोलर मास भी आता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ. ओके, अब मोलर मास कैसे निकालते देखते हैं एटॉमिक वेट की मदद से. है ना, लेट अस से मोलर मास ऑफ, पहले लेते हैं मीथेन. है ना, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4 ऐसा. सो मोलर मास ऑफ मीथेन शुड बी व्हाट? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. है ना, और एक ही कार्बन है, ऐसे आएगा. तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 4, क्योंकि 4 ये. करेक्ट ना? सो दिस शुड बी इक्वल टू 12 एंड दिस इज 4 × 1 which is 4. सो टोटल इज 16. ऐसे मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम्स पर मोल. Correct. Then molar mass of, let's say we have glucose. What is the formula of glucose? C6H12O6. Now this should be atomic mass of carbon into 6 plus atomic mass of hydrogen into 12 plus atomic mass of oxygen into 6. So that is 6 × 12 plus 12 × 1 plus 6 × 16. That is equal to 72 plus 12 plus 96, and the total will be 180 grams per mole. करेक्ट ना? ये GMV है, ग्राम मोलर मास. मोलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. है ना, 1 मोल कंपाउंड का होता है. करेक्ट. लेट्स से 1 मोर कंपाउंड, लेट्स से इथाइल अल्कोहल.
या इथेनॉल, व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज C2H5OH, या तो कंडेंस फॉर्मूला C2H6O है ना। तो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इंटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 6 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है, सो दैट इज 2 into 12 एटॉमिक मास, 6 into 1 करेक्ट प्लस 16 करेक्ट, so that makes it 24 plus 6 plus 16, so what should be the total? 46 and 24 plus 6 30 plus 10 40 plus 6 46 grams per mole. ये acetic acid, fourth example, you know what is the formula? It is CH3COOH, या तो C2 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, करेक्ट ना। तो 2 into atomic mass of carbon plus 4 into atomic mass of hydrogen plus 2 into atomic mass of oxygen, that is 2 into 12, है ना, ये ऑक्सीजन लिखना चाहिए, सॉरी, 2 into 12 plus 4 into 1 plus 2 into यहाँ 69, so that is 24 plus 4 plus 32, so that is 60 grams per mole. जितने भी लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन हमने आज इस लेक्चर में पढ़े हैं वो एक थियोरी पे डिपेंडेंट है, उसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन डाल्टन्स थ्योरी। उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, समझ लेते हैं, डिस्कस करते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम, है ना। हर एक मैटर का सबसे छोटा और जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता ऐसा पार्टिकल, इसको नाम दिया गया एटम, डाल्टन ने। एटम का ही मतलब, इस नाम का मतलब ये है कि जिसको विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन, बट आप जानते हैं ये पॉइंट गलत प्रूव हो चुका है। एटम इज नाउ फर्दर ब्रोकन इनटू 22 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम सिर्फ 3 पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन ये पहला पॉइंट अभी गलत होने के बाद भी अभी एटम ही रखा है। महर्षि कणाद ने भी इंडिया में ये बताया था कि सबसे सूक्ष्म जो होता है अणु, रेणु, ये सब कंसेप्ट उन्होंने भी बताया, बट ये डाल्टन का है और ये गलत प्रूव हो चुका है, लेकिन आगे के सही है ना। जिसमें दूसरा ये आता है, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, वेयरएज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर they differ in mass, correct? Or atoms of different elements have, you can say, different properties, करेक्ट ना। जैसे ये एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसके अंदर एटम्स कौन से हैं? 2, तो इसका प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा ना, करेक्ट ना। और सपोज हम लोग HCl लेते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो इसका और इसका प्रॉपर्टी अलग रहेगा। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज, वेयरएज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट। कॉमन सेंस है। दूसरा, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये हम लोग देख चुके हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट मास, है ना, प्रोपोर्शन का, उसमें ये यूज होता है। Whereas chemical reactions involve only reorganization of atoms, मतलब क्या? Atoms can neither be created nor be destroyed. This is the law of conservation of mass. अब रिएक्शन यानी क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से आपको HCl मिलता है, 2HCl, ये कैसे मिलता है? इट इज जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, कोई नया एटम हम लोग पैदा नहीं कर रहे, करेक्ट ना। H है प्लस Cl है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जाता है तो क्या मिलेगा? एक HCl मिलेगा, जबकि ये हाइड्रोजन इसके साथ जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, जिससे दूसरा HCl मिला। तो रिएक्शन इज नथिंग बट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, नो न्यू एटम इज फॉर्म। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं H2 प्लस Cl2 से CO2 मिल गया, दिस इज रॉन्ग, पैथेटिक, ये हो ही नहीं सकता है, करेक्ट ना। दैट इज व्हाट द थियरी इज ऑल अबाउट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, है ना, दैट इज एटॉमिक मास निकालने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं, इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, करेक्ट ना, दैट इज AMU, करेक्ट ना। इसका ही मतलब होता है यूनिफाइड मास, है ना, ये और ये सेम है, या तो फिर डाल्टन ऐसा भी कहते हैं का, ये सब सेम ही है। एंड रिमेंबर 1 AMU मतलब ही 1 U मतलब ही 1 डाल्टन is approximately 1.66 into 10⁻⁻24 grams या 10⁻⁻27 kilograms, ऐसे आता है।
मतलब समझो, मान लो मैंने ऐसा आपको पूछा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स present in, first question, 254 U of iodine, and second question, 254 grams of iodine, correct ना? Whereas iodine का atomic mass is 127 U, unified mass. तो पहले का क्या आएगा, है ना? फर्स्ट का आंसर मैं बता रहा हूँ. Since 127 unified mass corresponds to one atom of iodine. Therefore, 254 U will correspond to two atoms. That's it. Whereas दूसरे के लिए क्या करना चाहिए? ये इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग ऐसा कह सकते हैं, 127 U corresponds to one atom. Correct? It contains one atom. इसको U को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 127 into 1.66 into 10 raised to minus 24 grams corresponds to one atom. तो 254 grams में कितना आएगा? X. तो X will be cross multiplication. 254 into 1.66. Yes, 254 into 1 upon 127 into 1.66 into 10 raised to minus 24. तो ये तो 2 हो गया. So this is basically 2 upon 1.66 into 10 raised to 24. ऐसे. तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग करेंगे, आपका आंसर 1 पॉइंट में कुछ आएगा into 10 raised to 24 एटम्स. करेक्ट ना? ये अगर 2 होता तो 1 आएगा ना, लेस देन 2 है तो 1 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा. You know that we can easily calculate. Right? So this is how you can convert grams into this. So with this, we have finished with the chapter that is some basic concepts of chemistry. इसमें कई सारी चीजें हमने पढ़ी है ना. एवरेज एटॉमिक मास अभी बाकी है ना, वो खत्म करता हूँ and then we can finish this chapter for the first time. Right? Some basic concepts of chemistry. सिर्फ एक concept छोटा सा बाकी है, that is average atomic mass. वो भी बताता हूँ. The last concept of this chapter is average atomic mass. इसके लिए पहले ये समझ लेते हैं occurrence या abundance of chlorine in nature is 3:1. है ना? इसका मतलब क्या? क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं. कौन से आइसोटोप्स हैं? एक है Cl35 और दूसरा है Cl37 और इनका रेशो है ना, ये 17 एटॉमिक नंबर है. नेचर में 3:1 है अबंडेंस. इसका मतलब एक 37 वाला अगर सेंटर में रहेगा तो इसको 3 35 वाले ऐसा घेर के रखते हैं नेचर में. ये 35 वाले 3:1 के रेशो में आता है ऐसा. तो फिर इसका एटॉमिक मास क्या लेने का? 37 ले लेगा कि 35? तो ऐसे केस में जब आइसोटोप्स होते हैं है ना, तभी एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है. कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास? जस्ट सी हो, 35 वाले का अबंडेंस 3 टाइम्स है तो इट शुड बी 3 into 35 प्लस 37 वाले का अबंडेंस 1 है तो इट शुड बी 1 into 37 अपॉन जितना भी अबंडेंस है दैट इज 3 plus 1. सो दैट मेक्स इट 105 plus 37 upon 4. So this will be equal to what? 142 upon 4, which will be 35.5. इसके लिए क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 लेते हैं. So this is the concept of average atomic mass. We have almost covered everything. है ना, ये तो एंडलेस है. मोल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इक्विवेलेंट मास हर एक चैप्टर में लगेगा. ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में, इनऑर्गेनिक में भी लगता है. Everywhere, even in organic chemistry, it is required. So very important chapter. So please keep revising it. Solve MCQs. You can ask me, है ना, in the comments column. आप उसमें questions पूछ सकते हैं, doubt पूछ सकते हैं. मैं answers दे रहा हूँ. और ये वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा. So just press the like button and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you.